Hello students. Today I am here with your economics chapter number 1, that is development. Development, it in Hindi it means vikas, progress. Now see the first heading, that is your development. See development या विकास जिसे हम कहते हैं उसे हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं. For a single person, like if we talk about a single person or of an individual, so individual always means, for a person, for a single person, it always means that if the income of that particular person is increasing, so a rise in his income and standard of living, because if the income will increase, then the standard of living automatically will increase. So that means that person will say that I am developing, I am making progress in my life. For example, if a person is earning rupees 35,000 per month and he is working hard to get more than that, and in case if he is able to get a job for 50,000 per month, that means he will say he had made a progress, he had made a development in his life, because with that extra income of 15,000 he is going to fulfill more of his demands. Even he can spend the money on his luxurious life also. But this individual development also vary from one person to another. अलग अलग होती है हर एक person के लिए development. For example, if a person is working as a labor, अगर वो लेबर की तरह काम करने वाला है, तो दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन डेवलपमेंट मीन्स अ सिक्योर जॉब फॉर ऑल डेज. उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेस का मतलब होगा कि उसको एक ऐसी जॉब मिल जाए जो उसको हर रोज़ काम मिल रहा हो, हर रोज़ की उसको सैलरी मिल रही हो. ठीक है. एंड इफ़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ परमानेंट जॉब, हु इज़ गेटिंग wages per day, but his developmental goal will be that he should get a more income job. उसको एक ज़्यादा इनकम वाली जॉब चाहिए होगी. So the in short we can say that the development for a for different persons may be different from each other. एक दूसरे से जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं या डेवलपमेंट है वो हर एक का अलग अलग है. क्यों? क्योंकि हर एक का जो दायरा है पहले लिमिटेड है, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं. तो जो उसके पास है वो उससे थोड़ा आगे ही सोच पाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगा. लाइक इफ़ अ लेबर वर्क इज़ देयर एंड ही इज़ बिग, he's just thinking that he will be only that day he will be a developed one when he is going to be the CEO of a company. So that cannot happen. So his developmental goal will be something different. Now the same thing you people have studied in your geography chapter also. Like in case one person's development sometimes means the loss of livelihood for the other person. This you have done in geography part where the construction of dams are given. So if the dams are given, then the state or the many of the people will be benefited. State people will be benefited, but the dam which will be constructed on the land of the those people whose land is that, so that land will be, or those persons whose land will be used in that will be disturbed, their livelihood will be disturbed. So एक का फ़ायदा पर दूसरे का नुकसान. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो ये डेवलपमेंट है, ये प्रोग्रेस जो है, कभी कभी हमारे लिए प्रोग्रेसिव है लेकिन किसी दूसरे के लिए उसका नुकसान है. ठीक है. सो सेम इज़ देयर नाउ द नेशनल लेवल. सबसे पहले हमने डेवलपमेंट की बात की फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल लेवल. डेवलपमेंट एट अ नेशनल लेवल. एक नेशन की, एक देश की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं? राइज इन नेशनल पर कैपिटा इनकम. नाउ यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम. Per capita income or average income, that is the same. That means how much money a single person is getting.
like the total income is there, total income of the nation is there, so that will be divided with the total population. So this is the formula also to calculate the average income or per capita income. Total income of the nation या टोटल नेशनल इनकम आप इसको बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सो अ राइज इन नेशनल पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम will be declaring the national income of the country. So a higher PCI stands for per capita income, is the goal of every nation. हर एक देश का क्या गोल है कि उसका हर एक जो पर्सन है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो इनकम है, इट शुड बी हायर, ज़्यादा होनी चाहिए. ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी अगर हम सिंगल पर्सन की बात करेंगे, एक सिंगल पर्सन की इनकम बढ़ रही है, तो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इनकम ओनली, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द family first of all, then to their relatives also, and then afterwards it will be, it includes the whole nation also. कि जो देश जितनी ज़्यादा सॉरी लोग जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है दैट विल बी ऑन द कंट्री ऑल्सो. दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. Like earlier only I gave you the person who is working at the income at the salary of 35,000 per month, ठीक है, and suddenly he got a job of 50,000, so his income will be increased. So this increased income will not affect only his own livelihood. उसकी अपनी जीविका चलाने में खर्च नहीं हो रहा है, वो उसकी लाइवलीहुड को चेंज नहीं कर रहा है, उसके लाइफस्टाइल को ही सिर्फ चेंज नहीं कर रहा है, बट टू ऑल हिज अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. बाकी की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल चेंज, क्योंकि वो पैसा उनके ऊपर भी खर्च होने वाला है, ठीक है. सो व्हेन दैट फैमिली विल इम्प्रूव और फैमिली विल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, तो द सोसाइटी इन विच दे आर रिजाइडिंग, वो सोसाइटी में भी एक रोब आ जाएगा कि देखो ये फैमिली जो है दैट इज़ द रिच फैमिली, एंड ऑटोमेटिकली इट विल इम्पैक्ट द नेशन ऑल्सो, ठीक है. तो एक सिंगल पर्सन की इनकम अगर वो कम है या ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री पर पड़ता है, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज पर्सन के उसमें कि एक सिंगल पर्सन को क्या मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद वन मोर एग्जाम्पल. अगर हम देखें कि हमारे कंट्री में ही देयर आर सो मैनी पीपल दोज हु आर वेरी रिच, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर, हम ये नहीं बोल सकते दैट इंडिया इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. नो, इट इज़ डेवलपिंग. वाई? बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम, क्योंकि जो वो अमीर कमा रहे हैं और जो गरीब को मिल रहा है उनका हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो जो उनका एवरेज निकलेगा दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है. दैट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट हेडिंग इटसेल्फ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास, देन इज मेजर्ड थ्रू. अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक, आर्थिक आप एक पर पर्सन का भी देख सकते हो और एक कंट्री का भी देख सकते हो कि एक पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है. नाउ the very first one is your per capita income, PCI, national income divided by total population. I have already explained you. World Development Report, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड इन 2012 में ये पब्लिश हुई थी. सो पीसीआई ऑफ कंट्रीज विद $12,776 और एबव, यानी कि जिन भी कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब एक सिंगल पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ अर्निंग $12,776 और एबव, और या इससे ज़्यादा है, so that will be treated as that will be termed as the rich country, and $1,005 और below are low income countries. और जो 1,005 से भी कम डॉलर कमा पा रहे हैं जिन कंट्रीज़ में एवरेज इनकम जो है अगर उससे कम है तो दैट कंट्री विल बी नोन एज low income countries. Now what is the position in for India? So India has $1,340 per capita income, sorry, per capita income. So
इंडिया के जो पर पर्सन जो मिलती है एक पर्सन को, दैट इज़ 1340, जो वो एवरेज निकालते हैं। तो इसलिए हम अपने कंट्री को लो इनकम में नहीं काउंट करते हैं, ना ही उसको डेवलप्ड कंट्री में काउंट करते हैं, रिच कंट्री में भी नहीं काउंट करते हैं। इट इज़ टर्म्ड एज डेवलपिंग कंट्री, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विकासशील देश। डेवलप्ड कंट्री हिंदी में होता है विकसित देश, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज मतलब विकासशील, जो विकास कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टर्म विच इज बीन गिवन टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये है आपकी सेकेंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसको हम बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने थोड़ा सा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में दिया हुआ है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखते हुए विल कंसीडर वेदर द कंट्री इज़ रिच और पुअर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने उसको थोड़ा सा, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एन एवरेज ऑफ PCI, उसमें क्या बोला है उसने, पर कैपिटा इनकम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मीन्स कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसमें भी और एक और जोड़ दिया उन्होंने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हो एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ, हेल्थ को भी उन्होंने उसमें ऐड ऑन कर दिया है। सो हाईएस्ट एवरेज ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स इज रैंक्ड एज फर्स्ट रैंक। तो जिस भी कंट्री के लोगों के पास ये हाईएस्ट होगा वो कंट्री को उन्होंने फर्स्ट रैंक दिया है, एंड नोन एज रिच कंट्री, उस कंट्री को रिच कंट्री बोला है। इंडिया हैज़ 130th रैंक, इंडिया का इसमें भी 130th रैंक है। क्यों? एवरेज इनकम भी वो देख रहे हैं, प्लस एजुकेशन लेवल को देख रहे हैं, प्लस उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको भी देख रहे हैं। उन तीनों को काउंट करने के बाद में जब वो निकालते हैं तो इंडिया इज़ हैविंग द 130th रैंक। नाउ द नेक्स्ट concept is your sustainable development. Sustainable development you have already done in your geography part also. Maintaining a certain development rate for present and also for future generation. यानी कि हमें इस तरह से प्रोग्रेस करनी है। प्रोग्रेस भी कैसे होगी? when we are having the resources. So we have to use the resources in such a way that they should be safe for our future also, और दे शुड बी लेफ्ट ओवर्स फॉर आर फ्यूचर ऑल्सो। यानी कि फ्यूचर की जो जनरेशन है दैट दे ऑल्सो शुड हैव एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद दैम टू मेक कंटिन्यूस प्रोग्रेस। अदरवाइज क्या होता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे देन वी आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। सो इट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Read the chapter further, I'll explain you in the meeting itself.